کو آپ کو معلوم نہیں ہے. دیکھیے جلسہ سننے آتے ہیں چلے جاتے ہیں, چندہ آپ دیتے ہیں چلے جاتے ہیں, لیکن دین کے بارے میں موٹی موٹی چیزیں معلوم نہیں ہے. کیسے ہم مسلمان ہیں؟ سورہ فاتحہ کا ترجمہ آپ دیکھیے, کتنے لوگ ہیں سورہ فاتحہ کا ترجمہ معلوم نہیں ہے. حضرت عثمان غنی نبی کے داماد تھے. داماد سمجھتے ہیں نا؟ شاید آپ لوگ ادھر بٹھیا بدیا میں شاید آپ لوگ جمائے بابو کہتے ہیں, یہی کہتے ہیں نا, جمائے بابو تھے نبی کے لیے. اور کتنے بڑے مالدار تھے بتا دوں میں, اور کیسے چندہ دیتے تھے میں بتا دوں. آپ چندے کی اگر یہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی واقعات اگر آپ پڑھیں گے دیکھیں گے حضرت عثمان غنی آگے بڑھے ہوئے ہیں. دیکھیں گے آپ, یہ داماد تھے نبی کے, جمائے بابو تھے نبی کے. اور حضرت عثمان غنی مطلب جانتے ہیں, ان کے نام کے ساتھ غنی لکھا ہوا ہے. غنی کے معنی ہے مالدار. آپ کلیا چک فرقہ کی طرف آپ چلے جائیے, وہاں جو پیسے والے ہوتے ہیں ان کے نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے مہاجن. واحد مہاجن, عبد الرحمن مہاجن. تو حضرت عثمان غنی اتنے بڑے مالدار تھے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے چندہ کیا تو اللہ کے رسول نے کہا کون ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا؟ حضرت عثمان غنی اٹھ گئے اور اٹھنے کے بعد کہا کہ اللہ کے رسول چندہ کسی سے لینے کی ضرورت نہیں, 100 اونٹ میں اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں. کتنے اونٹ؟ 100. نبی کی ایک آواز میں 100 اونٹ کی قربانی. اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے رکھیے, ضرورت نہیں ہے. 100 اونٹ کی قربانی. نبی نے کہا عثمان بیٹھ جاؤ. اس کے بعد نبی نے پوچھا کون ہے عثمان کے بعد؟ حضرت عثمان پھر اٹھ گئے اور اٹھ کے کہنے لگے اللہ کے رسول رکے 2 لے لیجئے, بس 2. کتنے؟ 2. مطلب 100 کے بعد اور 100 تو کتنے ہوئے؟ 200 اونٹ. اللہ کے رسول نے کہا عثمان بیٹھ جاؤ, میں تم سے نہیں کہہ رہا ہوں, اور دوسروں کو موقع دو. تیسری بار اللہ کے رسول نے کہا کون ہے جو اللہ کے راستے میں دے گا؟ میں اس سے وعدہ کر رہا ہوں کہ جنت میں دلواؤں گا اس کو. حضرت عثمان پھر اٹھ گئے, کہنے لگے اللہ کے رسول اور 100 لے لیجیے, اور 100. کتنے ہوئے؟ 300. 300 جب دے چکے, اللہ کے رسول نے کہا عثمان میں تم سے نہیں مانگ رہا ہوں, ارے کسی دوسروں کو موقع دو. میں بار بار تم سے نہیں مانگ رہا ہوں, کسی دوسروں کو موقع دو, تم بیٹھ جاؤ. چوتھی بار جب اللہ کے رسول نے کہا کون ہے عثمان کے بعد؟ دیکھیے ایسے کریں اللہ کے رسول, کون ہے عثمان کے بعد جو اللہ کے راستے میں دے گا؟ پھر حضرت عثمان اٹھ گئے, کہنے لگے کہ اللہ کے رسول 100 اور لے لیجئے. کتنے ہوئے؟ 400. ابھی آپ ایک بوری 2 بوری سیمنٹ مانگ رہے تھے تو مولانا 1.5 گھنٹہ تک تقریر کیے, 1 2 آ رہا ہے. کتنے پیسے والے ہیں یہاں؟ 400 ہو گئے نا. نبی نے کہا عثمان بیٹھ جاؤ. یہ نبی کے داماد تھے. نبی نے ایک بیٹی نہیں 2 بیٹی ان کو دی تھی, رقیہ, ام کلثوم. نبی کی یہ دونوں بیٹی کا نام, ایک بیٹی کا نام رقیہ, ایک بیٹی کا نام ام کلثوم. دونوں بیٹی دیے تھے عثمان کو, ایک ساتھ نہیں. گھبرائیے نہیں, 2 بہن کو ایک ساتھ شادی کرنا جائز نہیں ہے, ایک ساتھ نہیں. ایک کا انتقال ہو گیا تو دوسری بیٹی اللہ کے رسول دے دیے تھے, تو 400 ہو گئے. 400 کے بعد پھر کہا کہ کون ہے؟ حضرت عثمان غنی پھر اٹھ گئے, کہنے لگے اللہ کے رسول 100 اور لے لیجیے. کتنے ہوئے؟ 500. 1 مرتبہ نہیں, 2 مرتبہ نہیں, 3 مرتبہ نہیں, 7 بار اللہ کے رسول نے اعلان کیا. 7 بار. اور حضرت عثمان غنی 7 مرتبہ اٹھ گئے اور اٹھ کر کے کہنے لگے اللہ کے رسول 100 اور لے لیجئے, اللہ کے رسول 100 اور لے لیجئے, اللہ کے رسول 100 اور لے لیجئے. ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہو کر کے حضرت عثمان غنی نے 700 اونٹ اللہ کے راستے میں دیے تھے. کتنے بڑے مالدار تھے, کتنے بڑے مالدار تھے.
700 ऊंट दिए थे। मस्जिद से निकलने ही वाले थे, अल्लाह के रसूल ने कहा, अय उस्मान इधर आओ, अभी अभी मुझे जिब्राइल अमीन बता कर के गए, अय उस्मान आज के बाद सुन लो, ओ सुन लो मेरे भाइयों किशनगंज वालों, आज के बाद उस्मान अगर एक भी नेकी का काम ना करे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उसको गारंटी दे रहा है कि उस्मान जन्नत में जाएगा, उस्मान जन्नत में जाएगा, उस्मान जन्नत में जाएगा। ये देखिए तामीर और तरक्की में कितने हिस्सा ले रहे थे दीन के काम में। अल्लाहु अकबर। दूसरी चीज, मस्जिद लाजमी है, जरूरी है, क्योंकि इस्लाम में नमाज पढ़ना इनफिरादी जायज नहीं है। कैसे जायज नहीं है? वो अलग बात है कि आप सफर में हैं, अकेले पढ़ लिए, आपके गांव में मस्जिद है और आप बिना किसी उजरे के, कोई आपका बहाना नहीं है, आप लंगड़े भी नहीं हैं, आप लूल्हे भी नहीं हैं, चल सकते हैं, देख सकते हैं, चल सकते हैं, फिर सकते हैं, और अकेले आप मस्जिद घर में नमाज पढ़ेंगे? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आप अकेले घर में नमाज पढ़ेंगे? नहीं, मस्जिद जरूरी है, इज्तिमाइयत। मस्जिद में आपको आना पड़ेगा, मस्जिद में आपको हाजिरी देनी पड़ेगी। क्यों? अहब्बुल बिलाद इलल्लाहि मसाजिदुहा व अबगदुल बिलाद इलल्लाहि अस्वाकुहा। जानते हैं जगहों में सबसे अच्छी जगह अगर कोई है तो वो मस्जिद है, और कोई बुरी जगह अगर है तो वो बाजार है। मेरे भाइयों, वो बाजार है। बात आगे बढ़ गई तो मस्जिद कौन तामीर करेंगे? मोमिन। मस्जिद कौन तामीर करेंगे? जिनके अंदर ईमान है। मस्जिद कौन बनाएंगे? जिनके दिल में अल्लाह का ईमान है, जो अल्लाह को मानते हैं, जो अल्लाह के ऊपर यकीन रखते हैं, जो अल्लाह के ऊपर विश्वास रखते हैं, वही मस्जिद बनाएंगे। तो आइए हम दिखाएंगे कि आज मोमिन हम कितने परसेंट हैं। क्या हम सही में मोमिन हैं? सुनिए, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर रखी गई है। कितनी चीजों पर? 5 चीजों पर। एक हदीस में बता दूं, उसके बाद मैं मंत्रों को लेकर के साथ में चलता हूं। यह हदीस कहां मिलेगी? मिशकात शरीफ किताबुल ईमान में। इस हदीस के रावी हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। जैसे आप लोग बैठे हुए हैं, ऐसे ही अल्लाह के रसूल एक मरतबा सहाबा किराम को लेकर के बैठे हुए हैं। हदीस 1.5 सफ़े की है, मैं पढ़ नहीं रहा हूं, हवाला बता दिया, आप नेट का जमाना है, खोल करके देख लीजिएगा। एक आदमी आया अल्लाह के रसूल के सामने, हजरत उमर बिन खत्ताब फरमाते हैं कि हम लोग बैठे हुए थे, एक आदमी आया, मैं जल्दी से बता रहा हूं, उसके कपड़े सफेद थे, उसके बाल काले थे, उसके उसके सफर की कोई निशानी नहीं देखी जाती थी। वो आकर के नबी के पास बैठ गया और नबी से कुछ पूछने लगा, नबी से कुछ सवाल करने लगा कि अल्लाह के रसूल इस्लाम किसे कहते हैं। इस्लाम के बारे में पूछ रहा करके कि इस्लाम किसे कहते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने सबसे पहले फरमाया क्या? अल इस्लामु अन तशहद अन ला इलाहा इल्लल्लाह। इस्लाम यह है कि तुम सबसे पहले इस बात की गवाही दो एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। एक, और नमाज कायम करना 2, ज़कात देना 3, हज करना 4, या रोजा रखना 4, और हज करना 5। इन 5 चीजों को मिला करके ये इस्लाम है। 5 चीजों के मिन जुमला का नाम इस्लाम है। मेरे भाइयों, अगर हमारे हिंदू भाइयों की किताब आप मुताला करेंगे तो कसम खुदा की ऐसा लगेगा कि ये एक ही परनाले से निकले हुए 2 नाले हैं। एक का पानी पूरब जा रहा है, एक का पानी पश्चिम जा रहा है। पता नहीं अल्लाह ने जो कहा है कि हमने हर कौम में एक डराने वाला भेजा है, हिंदू भी कोई कौम है, उसके पास भी कोई डराने वाला आया होगा। हम ये नहीं कह सकते हैं कि रामचंद्र जी हैं, हम ये नहीं कह सकते हैं कि कौन है, लेकिन कोई जरूर आया होगा। नहीं तो इतनी अच्छी चीजें कहां से उसके अंदर आ गई। सनातन धर्मम पंचम वस्तु अस्ति प्रथमा वस्तु
एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते नास्ते किंचन, द्वितीय वस्तु साष्टांग कर्तव्य, तृतीय वस्तु दानम दीक्षिता, चतुर्थ वस्तु वरतधारी, पंचम वस्तु तृतीय यात्रा कर्तव्य, गंगा जलेषु भवति स्नानम कर्तव्य, पापम नाशम भवति। देखिए इसके अंदर भी वही चार, उतनी ही चीजें जो इस्लाम के अंदर है टू बटू, उतनी ही चीजें इसके अंदर भी है। सनातन धर्मम पंचम वस्तु वस्ति, हाँ प्रथमा वस्तु, इसमें भी है कि सनातन धर्म की जो बुनियाद है वो 5 चीजों पर है। पहली चीज एकम ब्रह्मा, द्वितीय नास्ते निनास्ते किंचन, यानी उस अल्लाह के अलावा कोई दूसरा माबूद है ही नहीं। हमारा इस्लाम क्या कहता है? अंतशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे पहले इस बात की गवाही दो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई पूजा योग नहीं है, अल्लाह के अलावा तुम किसी के सामने माथा नहीं टेक सकते हो, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह उसके रसूल हैं, ये गवाही देनी पड़ेगी तुमको। ऐ मेरे किशनगंज के भाइयों, अगर अल्लाह पर यकीन है, मैंने पहले कहा ना कि मस्जिद बनाने का काम किनका है, मस्जिद कौन बनाएगा? आज आप काम कर रहे हैं, हाँ काम कर रहे हैं आप। एक चीज मैं फिर से चलते चलते बता दूं, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपको खुद नफा नुकसान मालूम है, नफा व नुकसान मालूम है, कोई आपको खींच के नहीं ले जा रहा है कि चलो तुम ये काम करो, ये बिजनेस करो, कोई खींच के नहीं ले जा रहा, आप खुद जा रहे हैं। लेकिन अल्लाह जो जन्नत देगा ना, अल्लाह जो जन्नत देगा तो दिनों रात में 24 घंटे में 50 मर्तबा बुला रहा है। कितनी मर्तबा? 50 मर्तबा। बोले मौलाना कहाँ? चलिए मैं आपको दिखा रहा हूं। एक चीज गौर करके सुनिए, आपके इस जामे मस्जिद के मुअज्जिन जब अदान पुकारता है, कानों में उंगलियां रख करके जब अदान पुकार रहा है, क्या? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सबसे पहला जुमला यही है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कुछ भाइयों ने कहा मौलाना यहाँ नमाज का तरीका मालूम ही नहीं है, इस पर भी बोलिएगा। किसी ने कहा वजू पर भी बोलिएगा। चलिए 1-2 मिनट टच करता जाऊंगा मैं। अल्लाहु अकबर, अगर आपसे पूछा जाए कि अदान किस लिए दी जाती है, किस लिए दी जाती है, बोलिए तो किस लिए दी जाती है अदान? जवाब यही आएगा कि मौलाना नमाज का टाइम हो गया, इसीलिए ना, नमाज पढ़ने का टाइम हो गया है, जोहर का टाइम हो गया है, असर का टाइम हो गया है, मगरिब का टाइम हो गया, इसीलिए अजान दी जाती है। तो अच्छा जब नमाज के लिए दी जाती है तो सुनिए तो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, इसका माना क्या है? अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा। कहाँ नमाज की बात है? अल्लाह तो सबसे बड़ा है कहा जा रहा है। अच्छा दूसरी चीज ले लीजिए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अदान के ऊपर कभी आपने गौर नहीं किया, सुन के जाइए, सीख करके आज कुछ जाइए। कहीं मैं स्लो बोलूंगा, कहीं स्पीड बोलूंगा, आपको समझाने के लिए मैं पहली बार आपके यहाँ आया हूँ, लेकिन किशनगंज में मेरे बहुत से प्रोग्राम होते हैं। सुनिए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका माना है कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है, कोई माबूद नहीं। कहाँ नमाज की बात है? आप कहते हैं नमाज के लिए अजान दी जाती है, नमाज की तो बात ही नहीं आई। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मैं इस बात की गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहाँ नमाज की बात आई? 3 जुमले के बाद इसको दोबारा रिपीट किया जाता है 2-2 मर्तबा। उसके बाद कहा जा रहा है हय्या अलस्सलाह, आओ नमाज के लिए। यहां नमाज की बात आ रही है तो उससे पहले अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, ये सारी चीजें क्यों कही जाती है? सुनिए, गौर करके सुनिए। आप खेत में मकई लगाए हैं, सुनिए, मकई बोए हैं आप,
पानी दे रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं। आपके पास कपड़े की दुकान है, आप मार्केट में चले जाते हैं, कपड़े की दुकान में बैठते हैं, दिन भर आप कपड़ा बेचते हैं, रात के 8 बजे दुकान बंद करके आप घर में चले आते हैं। आप सोचते हैं दुनिया का ये दुकान मेरा सबसे बड़ा है। किशनगंज वालों सुनो सुनो, आपके मस्जिद का मुअज्जिन कहता है, ए कपड़े के दुकानदार तुम्हारी सोच गलत है, ये दुकान बड़ी नहीं है। सुनो, आप अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे बड़ा है। आपके पास चप्पल की दुकान है, आप चप्पल बेच रहे हैं, रोजी रोटी आपकी चल रही है, और आप सोच रहे हैं कि ये दुकान ही सबसे बड़ा है, तो आप गलत सोच रहे हैं। आपके मस्जिद का मुअद्दिन कह रहा है, सुनो सुनो, तुम गलत सोच रहे हो, दुनिया की सारी चीजें छोटी हैं, ये तुम्हारी दुकान भी, ये चप्पल की दुकान भी, ये कपड़े की दुकान भी, ये सारी चीजें छोटी हैं। सुनो, मुअज्जिन कहता है, अल्लाहु अकबर, अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे बड़ा है। इसीलिए कहा जाता है अल्लाहु अकबर, अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे बड़ा है। तो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर कितनी मर्तबा आया? 2, और इसको डबल कहा जाता है, तो 2 और 2 कितने हुए? 4। और ला इलाहा इल्लल्लाह से पहले एक फिर 2 मर्तबा कहा जाता है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, तो कितने हुए? 6। एक आदान में कितने मर्तबा? 6 मर्तबा कहा जाता है अल्लाह सबसे बड़ा है। ये मत सोचो कि आपका ये बिजनेस बड़ा है, ये मत सोचो आपका ये दुकान बड़ा है, ये मत सोचो आपका ये कारोबार बड़ा है। 24 घंटे में एक अदान में 6 मर्तबा, 5 मर्तबा अदान दी जाती है। 5 6 में कितने हुए? 30। 24 घंटे में 30 मर्तबा हमारे कानों में यह आवाज आती है, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा। कोई अगर ये कहे कि मौलाना कामयाबी तो इसी में है कि हम दुकान चलाएंगे, रोजी रोटी हमारी चल रही है, कामयाबी तो इसी में है। कौन कहता है नमाज पढ़ने में कामयाबी है? ये कौन कहता है कि मस्जिद में जाने में कामयाबी है? कामयाबी तो यहां है, दुकान चलाने में, कामयाबी तो कारोबार करने में है, कामयाबी तो फुला फुला चीजों में है। सोचिए, आप गलत सोच रहे हैं। मुअज्जिन देखिए क्या कह रहा, हय्या अलल फलाह, ऐ कपड़े के दुकानदार सोच सुनो, कामयाबी तुम्हारी दुकान में बैठने में नहीं है। ऐ चप्पल के दुकानदार सुनो, कामयाबी चप्पल बेचने में नहीं है। मकई में पानी देने वालों सुनो, कामयाबी मकई में पानी देने में नहीं है। मुअज्जिन कहता है, हय्या अलल फलाह, आओ मस्जिद में आने में तुम्हारी कामयाबी है, यहां तुम सक्सेसफुल होगे। दुकान में बैठने से तुम सक्सेसफुल नहीं होगे, यहां तुम्हारी कामयाबी है। तो हय्या अलल फलाह कितनी बार कहा जाता है? कितने? 2 मर्तबा कहा जाता है ना एक अजान में। तो 5 अजान में कितने हुए? कितने हुए? 10 मर्तबा कहा जा रहा है कामयाबी इसमें है, इसमें आइए। तो 30 और 10 कितने हुए? कितने? 40। एक चीज और दिखाऊंगा। आप अब सवाल करेंगे, मौलाना कहां नमाज के लिए बुलाया जा रहा है? नमाज के लिए बुलाने जाएंगे तब ना हम नमाज पढ़ने जाएंगे, नमाज के लिए कोई बुला ही नहीं रहा। सुनो किशनगंज वालों, पबना पुल के करीब रहने वालों, अरीब करीब से आने वालों, सुनो, मुअद्दिन कानों में उंगलियां डाल करके बाबा से बुलंद पुकार कर कहता है, हय्या अलस्सलाह, आओ नमाज के लिए,
حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے۔ دکاندار کل تم اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے جب اللہ کہے گا ارے کپڑے کی دکان چلاتا تو دنیا میں، ارے تمہاری دنیا میں چپل کی دکان تھی، دن میں تم کو ایک ٹائم کی نماز میں مؤذن دو مرتبہ تم کو بلاتا تھا، 2 مرتبہ تم کو بلاتا تھا، آؤ نماز کے لیے، آؤ نماز کے لیے، تم لیکن نماز پڑھنے نہیں آئے، تم اپنی دکان میں بیٹھے رہے، تم اپنے چپل کی دکان میں بیٹھے رہے، کپڑے کی دکان میں بیٹھے رہے، کاروبار کرنے میں تم لگے رہے، مصروف رہے، اپنے بزنس میں تم مصروف رہے۔ میرے بھائیو، ایک اذان میں 2 مرتبہ کہا جاتا ہے حیا علی الصلاۃ، تو 5 اذان میں کتنے ہوئے؟ 10، تو 40 اور 10 کتنے ہوئے؟ 50۔ پبنا پل کے قریب رہنے والوں، 24 گھنٹے میں 50 مرتبہ ہم کو آپ کو بلا رہا ہے اللہ کہ آؤ، کامیابی اس میں ہے۔ کتنا بڑا بد نصیب وہ انسان ہوگا کہ 50 مرتبہ بلانے کے باوجود بھی جو مسجد میں حاضری نہ دے، وہ کتنا بڑا بد نصیب ہے۔ میرے بھائیوں، مغرب کے بعد سے لے کر کے اب تک، اور میرے بعد اور ایک مولانا ہے، خالص قرآن و حدیث کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن پتہ نہیں کیسے ہم بدل نہیں رہے، ہمارا دل پگھلتا ہی نہیں ہے۔ نبی کے زمانے میں اٹھا کر کے دیکھیں گے، ہم کہتے ہیں مومن ہیں، اے مسلمان ہیں، نماز پڑھنے جا رہے ہیں، جمعہ کے دن اگلی صف میں ہم بیٹھتے ہیں، ہم تو مومن مسلمان ہیں۔ نہیں، قرآن کی آیت دیکھیے، کون مومن ہے، کون مسلمان ہے، میں ایک ایک پڑھتا جا رہا ہوں، آپ غور کر کے سنیے گا۔ مومن کون ہے، مسلمان کون ہے، فیصلہ آپ لوگوں کو کرنا پڑے گا، فیصلہ میں نہیں کروں گا۔ اللہ نے آپ کو دماغ دیا ہے، اچھی بری چیزیں آپ تمیز کر سکتے ہیں، یہ کیوں فیصلہ نہیں کر پائیں گے؟ چلیے میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں۔